السلام علیکم ناظرین، جرم کی ہزاروں عبرتناک داستانوں میں چند ایسی لرزاخیز کہانیاں بھی ہوتی ہے جو ایک باشعور انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ایسی ہی چند خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جرم کہانی۔ انسان پر حیوانیت سوار ہو تو اس کی آنکھوں پر بے حسی کی ایسی پٹی بن جاتی ہے جو اسے اندھا کر دیتی ہے۔ اس اندھے پن میں بد فطرت انسان بعض اوقات کیا کچھ کر بیٹھتا ہے اس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ انسان بے حس ہو جائے تو اسے کسی کا احساس نہیں رہتا۔ بعض بد کردار لوگ تو خونی رشتوں کو بھی نہیں چھوڑتے اور انہیں بھی بربریت کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، حسد ایک ایسا زہر ہے جو اگر کسی شخص کے سر پر سوار ہو جائے تو دشمنی بن جاتی ہے اور پھر یہ دشمنی فساد کی جانب لے جا سکتی ہے، جس سے گھر معاشرے میں فساد پھیل جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا لاہور کی شہر میں، جہاں سفاک ملزم نے سابق ایس پی کو پسٹل سے فائر کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فرحت عباس ستمبر 2020 میں پولیس سے بطور ایس پی ریٹائر ہوئے تھے اور گزشتہ روز وہ گھر کے باہر کھڑی اپنی گاڑی میں سوار ہو رہے تھے کہ نامعلوم مسلح ملزم نے انہیں گھر کی دہلیز پر ہی گولیاں ماری اور فرار ہو گیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرحت عباس کو ہیلمٹ پہنے موٹر سائیکل پر سوار ایک ملزم نے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس کے اعلیٰ حکام بھی موقع پر پہنچ گئے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے سی آئی اے اور اسپیشل انویسٹیگیشن پر مشتمل ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی۔ میں گھر میں سویا ہوا تھا تو فائر کی آواز سن کے میں باہر نکلا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک وہ گر چکے تھے اور ان کو گاڑی میں ڈال کے لے کے جا رہے تھے، تو یہ واقعہ ہوا ہے۔ بڑے شریف آدمی تھے وہ، نہایت ہی شریف آدمی تھے وہ، ان کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا۔ ہماری یہی حکومت سے التجا ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لیا جائے اور ذرا بہتر طریقے سے اس کو حل کیا جائے۔ تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں گھر لیے ہوئے کو، تو ہمارے ساتھ تو بڑے اچھے تھے، بڑے نائس آدمی تھے اور بڑے شریف آدمی تھے، بڑے کوآپریٹو تھے اور بڑے ڈیسنٹ تھے۔ کوئی کسی کے ساتھ ان کا کوئی نہیں تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا۔ واقعے کا مقدمہ مقتول کے بھتیجے سلمان طاہر کی مدعیت میں درج کیا گیا اور ایس پی اقبال ٹاؤن عثمان ٹیپو نے قتل کی واردات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ فائرنگ کرنے والے ملزم کی شناخت عمل میں لائی جا رہی ہے۔ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ملزم کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے یقین دہانی کروائی کہ وقوع میں ملوث ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ سابق ایس پی کے قتل کا سی پی او بلال صدیق نے نوٹس لیتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیا گیا۔ سابق ایس پی فرحت عباس شاہ کو مبینہ طور پر ان کی بھابھی نے قتل کرایا۔ لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں سابق ایس پی فرحت عباس شاہ کو ان کے گھر کی دہلیز پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق ایس پی کے قتل میں ملوث 2 خواتین سمیت 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور حراست میں لی جانے والی خواتین میں مقتول کی بھابھی بھی شامل ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فرحت عباس شاہ کے قتل میں ان کی بھابھی ہیرا ملوث ہے، جو بیوہ ہے اور ذاتی گارڈز بھی رکھے ہوئے ہیں۔ صبح 9:08 کا وقوع ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج پورے ان کے گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ 9:48 پہ وہ جو نامعلوم شخص جس نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، 7 منٹ تک وہ ادھر ہی پھرتا رہا گلی میں، ادھر ان کو دیکھتا رہا، ان کو گلو کا آفر کرتا رہا کب نکلنا ہے، یا تو اس کو پتا تھا ان کی موومنٹ کی کہ انہوں نے اس وقت نکل کے جانا ہے۔ جیسے وہ گھر سے نکلے ہیں اور گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں تو اس نے فوری طور پہ 3 فائر کیے، جس میں 2 ان کے گردن میں لگے، ادھر لگے نہیں، اور اس کا ہم فوراً گھر والے نکلے ہیں اور ان کو ہم پہلے ہاسپٹل لے کے گئے۔ ہمارے گھر کے پاس ہی حسین ہاسپٹل ہے، وہاں لیکن کہ آپ ان کو شیخ دہ لے، تو ہم فوری طور پہ ہاسپٹل لے کے اتنی دیر میں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی بھی ایس پی صاحب بھی وہاں پہ آ گئے تھے شیخ دہ ہاسپٹل، بٹ وہاں جاتے جاتے جو ہے نا ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا تھا ہی از نو مور۔ ایس پی سی آئی اے لیاقت علی ملک نے بتایا کہ فرحت عباس کے قتل میں ملوث بیوہ بھابھی ہیرا اور سیکیورٹی گارڈ عارف افریدی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیاقت علی نے بتایا کہ مقتول ایس پی فرحت عباس اپنی بیوہ بھابھی کو ذاتی گارڈز رکھنے سے منع کرتے تھے اور اسی بات پر دونوں میں رنجش پیدا ہو گئی تھی اور ملزمہ نے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ایس پی کے مطابق ملزم 2 ہفتے سے مقتول کے گھر کے قریب ہوٹل میں رہائش پذیر تھا اور قتل کا منصوبہ
सर अंजाम देने से कबल अपना हुलिया तब्दील किया। तमाम पहलुओं पर तफ्तीश जारी है, जल्द हकायक से पर्दा उठाएंगे। दूसरी जानिब मकतूल साबिक SP फरहत अब्बास शाह की नमाज जनाजा पतोकी में अदा कर दी गई है और उनकी तदफीन उनके आबाई इलाका में की गई है। नमाज जनाजा में साबिक वजीर सरदार आसिफ और समाजी शख्सियात समेत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। असल में ये गांव के लिए निकल रहे थे, तैयार हो रहे थे। उधर एक पंचायत थी, उधर जाना था इन्होंने सुलह के लिए, और अराउंड 9:45-10 बजे का टाइम था। तो अभी सामान वगैरह गाड़ी में रखा है, तो गाड़ी में बैठने लगे तो फायर की आवाज़ आई है। मैं कमरे में था, मैंने कमरे से निकल के आया हूँ। उस टाइम तक 2-3 फायर और हो चुके हुए थे। तो जब मैं बाहर आया तो उस टाइम तक वो गिर रहे थे। तो उस टाइम वो मतलब कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन कंडीशन ऐसी थी, ब्लड काफ़ी लॉस हो गया था उनका। उनको इस तरह ही उठा के हॉस्पिटल लेकर गए हैं, गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेकर गए। तो मैं भी नज़दीक हॉस्पिटल था, तो उनको समझ नहीं, उन्होंने कहा जी आप तो किसी बड़े हॉस्पिटल लेके गए। तो इधर से ही हम लोग उनको आगे लेके गए हैं, शेख जायद लेके गए हैं। तो उन्होंने अपना जो ट्रीटमेंट करना था, उन्होंने एक एमरजेंसी में लेके जाके क्या किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी कोई हमें पल्स नहीं फाउंड हम कर पा रहे। तो उन्होंने कहा था कि ये आई थिंक एक्सपायर हो चुके हैं, रास्ते में शायद हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक चौधरी फरहत अब्बास की अपनी ही भाभी से जेठ को अपने दूसरे शोहर से कत्ल करवाया। मकतूल अपने भाई कलीम अनवर उर्फ कमी की बीवी से शादी करना चाहता था, लेकिन कलीम अनवर उर्फ कमी की बीवी ने शादी से इनकार किया और सिक्योरिटी गार्ड आरिफ अफरीदी से शादी कर ली। मुलजिमा ने अपने दूसरे शोहर आरिफ अफरीदी के जरिए अपने जेठ चौधरी फरहत अब्बास को कत्ल करवा दिया और मुलजिम आरिफ कत्ल करके इलाका गैर फरार हो गया। के हिस्से में अल्लाह ताला ने ये कामयाबी दी कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 24 घंटे से भी कम वक्त में जो शूटर है जिसने टारगेट किया एसपी साहब को और शहीद किया, न सिर्फ उसको गिरफ्तार किया बल्कि उसकी पूरी डिटेल जो मैंने आपको कहा कि हम इंशाल्लाह आपके साथ पूरी वीडियो पूरी शेयर करेंगे कि किस सीक्वेंस में उसने काम किया, जहां से वो निकल के आया, किस हुलिये में आया, कहां से उसने बाइक ली, कहां आके उसने 15 मिनट वेट किया, कहां आके उसको इंफॉर्मेशन मिली और उसने आके उसको टारगेट किया। टारगेट करने के बाद जब वो वापस गया तो उसने हुलिया फिर दोबारा कहां चेंज किया, ड्रेस कहां चेंज किया, उसके बाद ड्रेस चेंज करने के बाद बाइक कहां पे पार्क किया और बाइक कहां पार्क करने के बाद वापस अगेन ड्रेस कहां पे आके चेंज किया। तो पूरा उसने बहुत ऑर्गेनाइज और प्लान और चालाकी के साथ कोई ट्रेस अपने साथ उसने नहीं छोड़ा था। CIA पुलिस की टीमों ने मुलजिमा को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहते हैं जब इंसान पर इश्क या इंतकाम का भूत सवार हो जाए तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। अक्सर लोग मोहब्बत में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि वो संगीन से संगीन जुर्म करने से भी नहीं कतराते, बल्कि उनके मुताबिक इश्क में हर चीज जायज हो जाती है। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि कभी किसी शख्स ने अपनी मोहब्बत की खातिर किसी मासूम को मौत के घाट उतार दिया, और ऐसे वाक़यात अक्सर हमारी खबरों और अखबारात की जीनत बने रहते हैं। CIA इकबाल टाउन पुलिस की स्पेशल टीमों ने मुलजिम आरिफ को मोबाइल फोन की लोकेशंस की मदद से इलाका गैर से गिरफ्तार किया। SSP CIA लियाकत अली मलिक ने बताया कि मकतूल ने बेवा भाभी को जाती सिक्योरिटी गार्ड रखने से मना किया था। मुलजिम 2 हफ्ते से मकतूल के घर के करीब होटल में रिहाइश पजीर था। और इसमें 2 मुलजमान हैं, एक जिसका नाम आरिफ अफरीदी है वो, और दूसरा जिसका ताल्लुक बाजोड़ से है, और दूसरा जो है हिरा उर्फ सना, जो कलीम उर्फ कलीमी जो इनके भाई थे एसपी साहब के, उनकी बेवा है। ये 2 मुलजमान जो हैं ये इसमें मुलव्वस हैं और इन्होंने इंफॉर्मेशन जो दी सारी, जो इंस्टिगेट किया, जो प्लान किया, जो तैयार किया, वो हिरा और सना ने किया जो उनकी भाभी है, और जो एग्जीक्यूट किया वो आरिफ अफरीदी ने। दोनों मुलजमान अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, और जो बाकी आगे उसका प्रोसेस है इंशाल्लाह तफ्तीश का, कानून अपना रास्ता लेगा और इंशाल्लाह कानून के मुताबिक हम आगे तफ्तीश करेंगे। किसी ने खूब कहा था कि इश्क नस्लें उजाड़ देता है, और फिर जवानी का जो इश्क है उसकी और बात है, और जो बुढ़ापे का इश्क है वो हमेशा नुकसान देता है। बुढ़ापे में अमूमन इस तरह होता है कि जब भी कोई शख्स इस डगर पे सोचता है, चलता है, वो कहीं ना कहीं लूप होल छोड़ता है जिससे मसाइल पैदा होते हैं,
वो रंजिशें बढ़ती हैं, और वो इस कदर रंजिशें बढ़ती हैं कि कत्ले आम तक बात आ जाती है। और इसी किस्म का एक वाक़या लाहौर में पेश आया है। लाहौर पुलिस में खिदमत सर अंजाम देने वाले फरहत अब्बास नामी SP, वो अपनी सर्विस से रिटायर होते हैं और अपनी भाभी को मना करते हैं कि वो प्राइवेट गार्ड ना रखे। वो उनकी एक नहीं सुनती, वो प्राइवेट गार्ड्स को रखती है। और वो मामला चलते चलते यहाँ तक पहुँचता है कि एक दिन फरहत अब्बास को उसकी गाड़ी के पास खड़े हुए लोग मोटरसाइकिल पे आते हैं, हेलमेट पहने होते हैं और फायरिंग करके कत्ल करके चले जाते हैं। पुलिस रेड करती है, रेड करके मुलज़मों की गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें करती है और मुलज़मान गिरफ़्तार हो जाते हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब मुलज़मान की गिरफ़्तारी अमल में आती है तो उन मुलज़मान में 2 ख़वातीन भी होती हैं, और एक खातून कौन होती है? मकतूल की सगी भाभी होती है। और इन्वेस्टिगेशन में पता ये चलता है कि मकतूल की भाभी भी इस कत्ल की साजिश में मुलव्वस थी। उसकी वजह क्या थी कि मकतूल अपनी भाभी के साथ शादी करना चाहते थे और उसने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, और उसने एक सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर ली। दोनों के दरमियान ये मामला जो है वो रंजिश बढ़ती गई, मामला ख़राब होता गया, और हद ये हुई कि आखिरकार वो इश्क जो पला था जवानी के बाद उम्र के आखिरी हिस्से में, उसने SP की जान ले ली। अब पुलिस उसके ऊपर तफ्तीश कर रही है कि इस मामले में और कौन कौन लोग मुलव्वस हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इन मुलज़मान को, जिसमें ख़वातीन भी शामिल है, किस तरह कैफ़रे किरदार तक पहुँचाती है और उनको कैसे सज़ाएँ होती हैं। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि कत्ल का वाक़या तो हो जाता है, लेकिन रफ्ता जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती है तो मुलज़मान किसी न किसी तरीके से रिलीफ़ हासिल करते हैं, तफ्तीश में रिलीफ़ हासिल कर लेते हैं, प्रोसिक्यूशन में रिलीफ़ हासिल कर लेते हैं, अदालतों में गवाह पेश नहीं होते, वहाँ पर रिलीफ़ हासिल कर लेते हैं। एट द एंड कई ऐसे केसेस आते हैं कि मुलज़मान बरी भी हो जाते हैं और बाद में सज़ाएँ भी हो जाती हैं। अब देखना है कि इस SP का जो कत्ल है उसके मुलज़मान को क्या सज़ा होती है। नाज़रीन, इस मशीनी दौर में इंसान भी रोबोट बनकर रह गया है। उसको किसी की खुशी गमी की कोई परवाह नहीं होती। मिलावट से भरा इंसान, जिसे आज भी अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब दिया जाता है, खुद गर्जी और नफरत की दलदल में फंस कर रह गया है। किसी के दुख तकलीफ में साथ देने की बजाय उस पर हंसता और इन लम्हात से लुत्फ अंदोज होता है। हमेशा इससे रिश्ता बनाना चाहता है जिससे उसे किसी किस्म का कोई फायदा नजर आता है। आज की कहानी में हसद की आग में जलने वाली भाभी ने अपने जेठ को मौत के घाट उतार दिया। हसद से शायद ही कोई घराना और खानदान महफूज हो। ये मर्ज इस कदर सरायत कर गया है कि रोज पाकिस्तान के किसी न किसी कोने से दरिंदगी के वाक़यात सुनने को मिलते हैं। जब तक हम इखलाकियात, हमदर्दी और एहसास का दामन नहीं थामेंगे, इस किस्म के वाक़यात रोनुमा होते रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे उमरकोट से दिल दहला देने वाली दास्तान। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अब भी बाकी है। खानदानी दुश्मनी ना जाने कितनी जिंदगियां निकल गई और कितने घर बर्बाद कर चुकी, लेकिन नस्ल दर नस्ल चलती इस नफरत और कत्ल गारत से अगर कोई बाहर निकलना भी चाहे तो उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। जायदाद और जमीन की लालच में अपनों का ही खून सफेद हो गया। दरिंदा सिर्फ रिश्तेदारों ने दरीना दुश्मनी और मुकदमा बाजी की रंजिश में किसान अली बख्श को तशद्दुद का निशाना बना डाला। आज हमारे मुआशरे का जो हाल है वो सबके सामने है। घर हो, दफ्तर हो, गली मोहल्ला हो या बाजार, हर जगह आपको अदम बर्दाश्त का रुझान तेजी से बढ़ता नजर आएगा। ये हकीकत है कि हम में रवादारी जैसी अजीम सिफ्त खत्म होती जा रही है। कोई भी शख्स अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं, जिसके मनफी असरात मुरत्तिब हो रहे हैं। एक दूसरे पर हावी रहने की कोशिश करना अदम बर्दाश्त का सबूत है, जिसकी असल वजह हमारी दीन इस्लाम से दूरी है। अदम बर्दाश्त के बढ़ते हुए खौफनाक रुझान की वजह से हमारे मुआशरे में तशद्दुद और कत्ल के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। दरअसल बात कुछ इस तरह है कि उमरकोट की तहसील कुनरी के गांव तार बाबू के जमींदार और महकमे आबपाशी के मुलाजिम अब्दुल शकूर आराई का अपने भाइयों से खानदानी ज़रे ज़मीन के तनाज़ा गुज़श्ता कुछ अरसा से चल रहा था।
तनाज़े में शिद्दत उस वक्त आई जब जमींदार अब्दुल शकूर का अपने भाई अब्दुल गफूर आरई के किसान अली बख्श सोलंगी से खेतों में काम करने से रोकने पर झगड़ा हो गया। दरअसल से मसला चल रहा है, ये 1 साल से चल रहा है। ये मिल्कत थी मेरे वालिद साहब की, तो वालिद साहब ने क्या किया, वो अपनी हयाती में पहले वालिद साहब से इन्होंने बदतमीज़ी की, शौकत ने, गफूर ने, इसके बेटे ने, रजवान ने बदतमीज़ी की। उधर से कागज़ उठा के ले गए, उसको गालियाँ दी, उस पर कुर्सियाँ उठाईं, उस पर अपना पिस्टन निकाले। फिर उसने क्या किया, अपनी जो कागज़ थे, जो अपनी ज़मीन थी, वो जिसको जो जितनी देनी थी उसने दे दी। तब उसने वसीयतनामा लिखा, जब तक मैं हयाती हूँ तो मेरे पास रहेगी। तो उस वसीयतनामे में इन्होंने अमल नहीं किया। फिर इन्होंने ज़मीन पे उधर जाके कब्ज़ा किया, वालिद साहब को गालियाँ दी। फिर केस चला सिविल में, कुंडरी में वो फैसला हुआ, वो भी वालिद साहब के हक़ में गया। उसके बाद इन्होंने जाके फिर शीशन में गए, सिविल में उमरकोट गए, शीशन में उधर केस दाखिल किया। उधर से भी ये हार गए केस। शीशन ने वालिद साहब के हमारे हक़ में फ़ैसला दिया। जो वालिद साहब की ज़मीन थी, वालिद साहब ने छोड़ दी, इन्हों को दे दी इनकी ज़मीन, पानी में दे दिया, हर चीज़ दे दिया। उस टाइम भी ये कनकी उठा रहा था, रजवान और गफूर और शौकत, इन्होंने धमकी दी ट्रैक्टर वाले को, अगर थ्रेशर लेके आएगा हम आग लगा देंगे। झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें कहा गया कि बाअसर जमींदार अब्दुल शकूर आरई नौजवान पर सरेआम बेईमाना तशद्दुद कर रहा है, जिसको बुनियाद बनाकर कुनरी पुलिस हरकत में आई और किसान नौजवान अली बख्श सोलंगी की मुद्दईयत में जमींदार अब्दुल शकूर बेटे एहतशाम आरई समेत 3 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में मुद्दई किसान अली बख्श सोलंगी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरी बीवी मिस्मात सानूरी खेतों में काम कर रही थी कि ज़मींदार अब्दुल शकूर बेटा एहतशाम आरई ने अपने साथियों के हमरा मेरी बीवी पर तशद्दुद करके उसके कपड़े फाड़ कर तज़लील की। जिसको बचाने के लिए मैं आया तो ज़मींदार अब्दुल शकूर बेटा एहतशाम आरई और एक नामालूम शख्स ने मुझ पर हमला करके मुझे तशद्दुद का निशाना बना डाला। जबकि वायरल होने वाली वीडियो में किसान अली बख्श सोलंगी के तशद्दुद ज़दा बीवी या कोई खातून नज़र नहीं आ रही है, बल्कि जो वीडियो वायरल हुई उसमें साफ और वाज़े नज़र आ रहा कि 2 फरीकों के दरमियान झगड़ा हो रहा है। हमारा मुआशरा मजमूई तौर पर अदम बर्दाश्त के रास्ते पर है। सियासी, मजहबी और निजी इख्तलाफात में तशद्दुद का अंसर नुमायां नजर आता है। लोग मामूली इख्तलाफात पर एक दूसरे की जान और इज्जत के दर पर हो जाती है। जी मेरा मसला है, कल मेरी एफआईआर नहीं काट रहे थे, मेरे पे हमला किया, मेरे जेठ ने, मेरे देवर ने, उसके बच्चों ने मेरे पे हमला किया। अब्दुल गफूर ने, शौकत अली ने, रजवान ने, कबीर ने मुझे धक्का मुक्की की, मारा पीटा, गाली गलोच की, मेरे बेटे को भी मारा, मेरे कपड़े फाड़े। जब मैं एफआईआर कटवाने गई मेरी एफआईआर नहीं काट रहे थे। फिर उसके बाद मैं मीडिया में गई, उसके बाद मीडिया में ये रिपोर्ट चली, उसके बाद मेरी एफआईआर काटी गई। आप ऊपर से सिफारिश लेके आओ, आप ये करो, आप वो करो। जिसके बाद जाके इन लोगों ने 4-5 बजे मेरी एफआईआर काटी है। एफआईआर काटने के बाद मुझे कहा आप घर जाओ, हम बंदे उठा के लेके आते हैं। हम उसके साथ मोबाइल के साथ साथ चले हैं, अमेरिका चौक पे पहुंचे हैं। अमेरिका चौक पे आके गाड़ी सीधी निकल गई है, मोबाइल उमरकोट रोड पे निकल गई है। हमने दोबारा थाने में फ़ोन किया कि क्यों नहीं आ रहे बंदे उठाने की, मोबाइल क्यों उस तरफ गई है। कहने लगे वहाँ मोटरसाइकिल फुर होगी, उसके पीछे जा रहे हैं, उसके बाद तुम्हारे बंदे उठाएंगे। इन लोगों ने, ये बात पहले लीक हो चुकी थी, वो लोग भाग चुके थे। वो दुकान अफरा तफरी में दुकान बंद कर रहे थे और कोई लोग वो नहीं थे, वो चले गए थे, वो पहले ही निकल गए थे वो लोग, इनको पहले पता चल गया था। अब मेरी एफआईआर काटी है कल से, अब कल 4 बजे से लेके अब तक ये टाइम हो गया, मेरी एफआईआर पे कोई रद्द अमल नहीं हुआ, उन लोगों को नहीं उठाया गया। और मेरी ज़मीन पे भी नजायज़ इन्होंने बदमाश बिठाए हुए, कब्ज़ा किया हुआ है। लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए, उन लोगों को उठाया जाए। अगर नहीं होगा, अगर ये इस पे नहीं काम करेंगे, उनको नहीं उठाएंगे, तो फिर मैं कुछ और करूँगी, या मैं धरना दूंगी या फिर मैं ऊपर तक जाऊंगी, फिर मैं कुछ और करूँगी। फिर मुझे नहीं कोई कहे कि भैया बड़ा आदमी है, कि भाई बहन आप बैठ जाओ, चुप कर जाओ, फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मुझे अम्मा कल कहा था वही उन्हें शकूर आया, मुझे माँ जी बेइज्जती कही है, मुझे माँ जी इज्जत में हाथ विधान, मुझे माँ जा कपड़ा टूटा है और मुझे बाबा के टकराए, बस शुक्र आया उन्हें बुग्गा यहाँ पार जगन। इसके बाद किसान अली बख्श सोलंगी अपनी बीवी और बच्चों समेत प्रेस क्लब कुनरी पहुंचकर एहतजाज करते हुए मुतालबा करता है कि मुकदमे में नामजद मरकजी मुलजिम अब्दुल शकूर आरई को फौरी गिरफ्तार किया जाए।
क्योंकि मुलजिम से हमें जानी नुकसान का खतरा है। कल घात लीमन वैसे उते शकुर आयो अची मूंखे बदतमीज़ी कई, मुंहिंजे अची हथ खस कई। हाँ असांजी मदद कयो, जल्दी हिकिड़ो त झेलियो, अञा ॿिए खे झेलियो। जल्द में जल्द इंसाफ़ कयो वञे, जवाबदार ॿधो वञे। असां जानी ख़तरो न मञा, असांजे जान जो ख़तरो मोतमार, असांखे धमकियूं कंहिं टाइम असांखे हमिलो करे सघे थो। चिड़ियो मुंहिंजी घरवारी मुंहिंजा कपिड़ा पिया फाड़ी, मुंहिंजी बेइज़ती करण जी कोशिशि कई। पोइ मुंहिंजी घरवारी दाऊं कयूं, ऐं अची त वरी शकूर जो पुटु मूंसां विढ़िया। शकूर जो पुटु हींअर गिरफ़्तार आहे, शकूर अञा ॿार आहे। असांजी इल्तिजा आहे सभिनी खे हथ ॿधी जोरदार कयूं त असां इंसाफ़ कयो वञे, जल्द खां जल्द जवाबदार ॿधियो वञे। शकूर ज़मीनदार कोन्हे, असां हुनजो कुझु बि कुझु कयो, हरूभरू असांजे पोयां वसी ॿिए ज़मीनदार जा हारी। शकूर असांजे पोयां अची पियो आहे, असांखे ब्लैकमेल करे पियो। कुझु टाइम अॻु में मुंहिंजो छोकिरो मुंहिंजे घर में पिस्टल खणी डिॼी आयो, मुंहिंजी नंढड़ी ऊंच अची धक कई, पिस्टल जे मथां फायर कई। वरी ॿिए चकर मूं ते पुलिस खणी आयो, कूड़ा केस ठाहे मूंखे राति मुंहिंजे बचनि मंझि जी पुलिस आई, पाण अची घर मंझि पियो। ऐं कल्ह मुंहिंजी घरवारी गाह कयो पियो, वरी हुनखे धक कई अची। ऐं मुंहिंजो नेट ते हलल पियो, तव्हां ॾिसी वठो, मूंखे कुटे पियो, हेठि किरियो पियो, सॾो कुन कयो वञो। उसके बाद मुकदमे में नामजद मरकजी मुलजिम अब्दुल शकूर आरई की बीवी प्रेस क्लब पर पहुंच जाती है और सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहती है कि मेरे देवरों ने मेरे घर में घुसकर मुझ पर तशद्दुद किया और मुझे गालियां दी, जबकि मुकदमा भी मेरे ही शोहर अब्दुल शकूर आरई और मेरे बेटे एहतशाम आरई पर दर्ज करके मेरे बेटे एहतशाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरी आला हुकाम से अपील है कि मेरे शोहर और बेटे पर दर्ज किया गया झूठा मुकदमा खत्म करके मेरे बेटे को रिहा किया जाए। सुबह 8:30 बजे आए हैं, मेरी जमीन पे मेरे घास काटने से मेरे बेटे ने मना किया। इन लोगों ने मेरे बेटे को मारा, उसके पीछे आए, मेरे घर पे आए, मुझे मारा, धक्का मुक्की की है, गाली गलौज की है, गंदी गंदी गालियाँ निकाली हैं। कौन कौन है? अब्दुल गफूर वल हाजी फतेह मोहम्मद, शौकत अली वल हाजी फतेह मोहम्मद, रजवान अली वल अब्दुल गफूर, कबीर अली वल शौकत अली, ये चारों आए हैं। चारों ने नाइंसाफ़ी की है मेरे साथ। अच्छा। मैं थाने के लिए मेरी FIR नहीं काट रही, मेरी नहीं सुन रहा कोई भी। मेरे बेटे को भी लेके गए हैं वहाँ उमरकोट में, उसको भी उन लोगों ने सजा दिलवाई है, मेरे शोहर का भी नाम दिया। मेरी फरियाद कोई नहीं सुन रहा। मसला क्या आप लोगों का? मसला ये है कि ज़मीन जायदाद का मसला था। जायदाद मेरे ससुर की थी, उसने सबको दे दी, बांट दी। इनका भी हक मेरे शोहर ने दे दिया, अदालत में फैसला हो गया। अब ये हमें मेरे बेटे की जायदाद में आके ये कब्जा कर रहे हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं। कल भी लोग, पहले हमने इनको छोड़ा, कई बार छोड़ा, चलो खैर है खैर है। कल भी इन लोगों ने आके की, जाके वहाँ लोगों ने फटा किया, सब कुछ किया। मेरे बेटे को इन लोगों ने लॉकअप करवाया। अब ये लोग जो है ना छोड़ नहीं रहे। थाने क्या ऐसे क्या बात ऐसे जो ऐसा चले हमारी सुनी नहीं, वो आया ही नहीं अंदर, बाहर से बाहर चला गया। अच्छा। उसने हमारी सुनी नहीं, हमारी नई रिपोर्ट काटी। अच्छा। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी रिपोर्ट काटी जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं इंसाफ होगा तो मैं ऊपर तक जाऊंगी। मुझे ज्यादा दे दी मैंने, सबका हिस्सा दे दिया मेरे शोहर ने। अब उसका वाला जिंदा बैठा, उसने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ नहीं देनी, लेकिन मेरे शोहर ने कहा कि दे देता हूँ, चलो भाई है। उसने एहसास करके दे दिया। रज़वान को 7 साल की सजा आ रही थी झूठ बोलने के जुर्म में। मेरे शोहर ने माफ किया उसको कि चलो भाई का बेटा, लेकिन नहीं, इन लोगों ने फिर भी ज्यादती की, मेरे बेटे को जेल में लगी गई। कुनरी पुलिस ने मुकदमे में नामजद एक मुलजिम एहतशाम आरई को गिरफ्तार करके सिविल जज की अदालत में पेश कर दिया और 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की। जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त सिविल जज ने रद्द करते हुए मुलजिम एहतशाम को जेल भेजने के अहकाम जारी किए। इस तरह इस मामले का ड्रॉप सीन होता कि ये मामला किसी खातून की तजलील या नौजवान पर तशद्दुद करने का नहीं, बल्कि 4 भाइयों के दरमियान ज़रे ज़मीन का तनाज़ा है। तो फिर मैं सिविल में कुंडरी गया, उसने फिर लेटर निकाला, थाने पे गया, थाने वाले ने कुछ नहीं सुने। उन्होंने पता चल गया कि ये लेटर निकल गया, थाने वाले ने एक्शन नहीं लिया, पर वो फिर नहीं आए। तो हमने थ्रेशर से अपनी कनकी निकाल के लेके, उससे पहले रज़वान ने हमला किया और दहशतगर्द बैठाए हुए हैं। मेरी ज़मीन है 4 एकड़, तो उस पर इसने कब्ज़ा किया। रज़वान ने, गफूर ने और कबीर ने और जो है शौकत है, ये मेरी ज़मीन की ये 27 नकल है। ये 4 एकड़ है, इस पर माछी, इसने क्रिमिनल बंदे हैं जो वो बैठाए हुए हैं, जिन्होंने मेरे पे झूठा केस दाखिल किया है। इन्होंने खुद ने कराया है। उधर अभी भी ज़मीन पे
अपने इंक्वायरी कर सकते हैं ये ज़मीन पे ये किसकी ज़मीन है, इधर शकूर का हिस्सा इसके अब्दुल शकूर का है या नहीं है। मीडिया जा सकती है। मैं DIG से मुतालबा करता हूँ, DIG मीरपुर खास, IG कराची से मुतालबा करता हूँ और SP उमरकोट से मुतालबा करता हूँ, ये सरजमीन पे जाएं, अगर देखें कि मैं झूठा हूँ मुझे सज़ा दें, अगर ये झूठे हैं इन्हों को सज़ा दें। ये मेरे सत्तंगी नकल है, इसमें क्रिमिनल बंदे हैं माछी जिन्होंने मेरे पे केस दाखिल झूठा किया, उस पर ये कब्ज़ा किया हुआ है, मेरे बच्चों को मारते हैं। और उसके बाद ये कोर्ट ने फैसला दिया, ये सेशन कोर्ट का फैसला है, इस पे रिजवान को सज़ा हो रही थी 7 साल, फिर इसने माफ़ी मांगी है, ये लिख के दिया। ये मेरा तूरिया इसने 2 एकड़ का निकाला था और इसने दंड भरा है। ये सेशन कोर्ट का फैसला है। लालच और हिरस के मारे लोग किसी भी हद को पार करने से नहीं कतराते। ऐसे लोग अपने हदफ को पाने के लिए संगीन तरीन जुर्म भी कर गुजरते हैं, लेकिन लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और हर किसी को उसके किए की सजा एक ना एक दिन जरूर मिलती है। जमीन का तनाजा न जाने कितनी जिंदगियां निकल गया और न जाने कितने लोग इसका मजीद शिकार बनेंगे। जरूरत इस अमर की है कि हम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और मामलात को मिल बैठ कर हल करें। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे कराची के बेलगाम डाकू जिन्होंने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जब कहानी अब भी बाकी है। कायद में जराइम पेशा अफराद का राज, शहरियों को चोरों, डाकुओं और लुटेरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। पुलिस अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। ताजिर बरादरी, दुकानदार और शहरी सरापा एहतजाज। बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की वजह से आवाम का जीना मुहाल। अब तो घरों से खरीदारी के लिए निकलने के बाद भी बाहिफाजत वापसी भी एक इम्तिहान बन गया। मुसलसल बढ़ते हुए जराइम में इजाफा होने लगा। IG सिंध और कराची पुलिस के अहकामात पर अमल दरामद कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आए दिन स्ट्रीट क्राइम करने वाले मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकू किसी भी मार्केट में घुसकर असलहे के जोर पर दुकानों से लाखों रुपए नकद और मोबाइल फोन छीनकर बासानी फरार हो जाते हैं और एक ये मामूल बन चुका है। ऐसे माहौल में शहरी अपनी दुख की दास्तान सुनाएं तो किसे? शहरी गैर महफूज हो गए। लूट मार की बढ़ती वारदातों में शहरी कीमती जानो माल से महरूम होने लगे। पुलिस इन पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम है। कराची में चोरी, डकैती और राहजनी की बढ़ती हुई वारदातें इंतहा को पहुंच गई, जबकि इन वारदातों को कंट्रोल करने के लिए की जाने वाली पुलिस की कार्रवाइयां न होने के बराबर हैं, जिसकी वजह शहरी दिन दिहाड़े मसरूफ तरीन मार्केटों और बाजारों में भी डाकुओं के हाथों लुटते दिखाई देते हैं। शहरी कहते हैं कि पुलिस की नाकिस कारकर्दगी की वजह से तो अपने घरों से बाहर निकलते हुए भी खौफ आने लगता है। कराची शहर और गिरदोनवाह में होने वाली डकैती, चोरी की वारदातों की तादाद रोजाना की बुनियाद पर 100 से भी तजावुज कर गई है। ये हमारे दुकान पे आए दिन डकैती होती रहती है। काफ़ी दिनों से हम परेशान हैं। हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नमेंट को कहते हैं कि हमारे साथ तावन करें। हम इधर बैठते हैं, रात को लड़के आ जाते हैं, जो भी होता है लूट के ले चले जाते हैं। हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपील करते हैं कि मेहरबानी हमारे साथ तावन किया जाए। कायद में अमनो अमान यकीनी बनाने के बजाय तमाम थानों पर ना तजर्बाकार और सिफारिशी SHOs तैनात होने पर शहरियों की जिंदगी दाव पर लगा दी गई है। तमाम थानों में खड़ी पुलिस मोबाइलें नाकारा होने की वजह से मौका वारदात पर पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो 15 पुलिस मोबाइल भी 10 बार कॉल करने के बावजूद मौका वारदात पर पहुंचने से कासिर है, जिसकी वजह से कराची में जराइम पेशा अफराद दिन हो या रात गली कूचों और चौराहों पर खड़े होकर दलेरी से वारदातें करते हैं। इन वारदातों में औरतों से पर्स छीनना, गाड़ियों को रोककर असलहे के जोर पर लाखों रुपए नकदी, जेवरात और कीमती अशिया लूट ली जाती हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट हैं कराची के, कोई भी मुसल्ला अफराद से और जवाबदारों से, मुलजमान से बचा हुआ नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट मलीर है वो तो यरगमाल बना हुआ है। पुलिस बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, पुलिस कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। किसी भी रोड पे किसी से हथियारों के ज़ोर पे
मुलजमान जो आते हैं, मुसल्लह अफराद जो आते हैं, किसी से मोटर बाइक छीन के चले जाते हैं, किसी से घर के पैसे छीन के चले जाते हैं, कोई फैमिली के साथ होता है, उनका कोई लिहाज नहीं है। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, उसके दौरान लोग शॉपिंग करने के लिए जो निकलते हैं वो जो है सेफ़ नहीं है। पुलिस क्या कर रही है, हर कोई सवाल उठा रहा है। आज मैं ख़ुद एक एंकर पर्सन हूँ निजी टीवी चैनल का, मैं ख़ुद इन मुलजमानों के हाथों लूटा गया हूँ। मेरे हाथ में मोबाइल था मेरा, वो मोबाइल मेरे से छीन लिया गया और हथियारों के ज़ोर पे मेरे से मेरा वॉलेट, मेरा पर्स छीन लिया गया और उसके बाद पुलिस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। शाह लतीफ़ थाने की हदूद में मतीन कॉम्प्लेक्स के नीचे, मेरे घर के नीचे मेरे से स्नैचिंग हो गई और अभी तक पुलिस ने कोई भी उसका अजाला नहीं किया। पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की, एनसी करवाने की कोशिश की, ना कोई एनसी करी गई, ना कोई एफआईआर हुई उसकी और अभी तक कोई अजाला नहीं हुआ। तो हम जब सहाफ़ी जो यानी कि मज़लूम की आवाज़ बुलंद करने के लिए बात करते हैं, हम मीडिया पे बैठ के ये बात करते हैं कि भाई मज़लूमों के साथ डकैती हो गई, धाड़ा हो गया, ये हो गई, फुर हो गई, तो हम खुद सेफ़ नहीं है तो उनकी बात क्या करें हम। बहुत अफसोस होता है कि कराची की पुलिस और उंगलियां ख़ास तौर पे उठ रही हैं आईजी सिंध जो हैं मेमन साहब, उनके ऊपर और एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडो के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस बिल्कुल बेबस बनी हुई है, ख़ास तौर पे मलीर की पुलिस और थाना जो है शाह लतीफ़ टाउन, उसकी हदूद में मेरे से आज स्नैचिंग हुई। बहुत अफसोस हुआ है कि मैं ख़ुद आज ख़ुद को मजलूम महसूस कर रहा हूँ कि मेरी दादरसी के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। पुलिस को गैर सियासी और पेशावराना फोर्स बनाए बगैर दहशतगर्दी और बड़े जराइम की रोकथाम मुमकिन नहीं। यही फोर्स देर पा अमन की ज़ामिन है, क्योंकि इसी ने रोज़मर्रा मसाइल को निपटाना होता है। ताहम सितम ज़रीफ़ी ये है कि गुज़िश्ता चंद अशरों से पुलिस पर मुकम्मल तौर पर सियासी रंग गालिब आ गया है। वो सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही इस्तेमाल होती है। अब से ढकी छुपी बात तो है नहीं, ये शहर कायद जराइम का गढ़ बन चुका है। यहाँ पर जो पुलिस है वो पता नहीं कहाँ है, कभी उनकी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही। यहाँ तक आपको बताते चले कि आए दिन जो है अब तो औरतों से जो है असले के ज़ोर पर जो है पर्स छीने जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। ईद की खरीदारी करने के लिए बच्चे घर से निकल रहे हैं, औरतें ख़वातीनों से छीना जा रहा है, जो है ना जेवर छीने जा रहे हैं, वो पर्स छीने जा रहे हैं, सामान छीना जा रहा है। रोज़ देखो तो कहीं ना कहीं एक एक इलाके में 20 डकैतियाँ हो रही हैं, लेकिन इलाका पुलिस नज़र नहीं आती। आईजी सिंध के अहकामात कहाँ हैं, कराची पुलिस चीफ के अहकामात कहाँ हैं, और आए दिन प्रेस रिलीज जारी होती है कि भाई शहर के अमन अमान के लिए जो है पुलिस ये करेगी, पुलिस वो करेगी, लेकिन कहीं पे वो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आखिर पुलिस कहाँ है, पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, लेकिन पुलिस कहीं पर शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने दिखाई नहीं देती, लेकिन अपने किसी मोटरसाइकिल वाले से पैसे ले रही होती है, किसी जो है चोर को पकड़ के आई तो उससे लेन देन करके छोड़ा जा रहा है। तो ये है शहर कायद के हाल, और हम कहते हैं कि खुदारा हम आवाम पर रहम करें। हमारे टैक्सों पर तनख्वाह लेने वाली पुलिस जो है वो हमारे ही ऊपर जो है ऐसे जालिम जो है ना पुलिस एहलकार जुल्म कर रहे हैं कि चोरी डकैती हर गली में निकलो, जिधर गली में निकलो कोई ना कोई मोटरसाइकिल सवार आते हैं 125 पर या किसी और गाड़ी पर आते हैं, आके पिस्टल रखते हैं, भाई पर्स दे दो, मोबाइल दे दो, ये चीज़ें। मैंने नहीं देखा कि पुलिस ने कभी कराची में कोई ऐसी बड़ी रिकवरी की हो जो बड़ी वारदात हो, या तो पुलिस फिर बड़ी वारदात के पैसे लेकर उनकी जो है रिकवरी कराती है। अगर किसी के पास जो होते हैं पैसे ही नहीं होते, थाने पर जाने के लिए पैसे नहीं होते, जाते तो वहाँ पर जो है हेड मोहर बोलते हैं कि भाई कितने दोगे, SHO बोलते हैं भाई उसको राज़ी करो, वो बोलते हैं उसको राज़ी करो। एक गरीब के पास जिसके पास एक पर्स था 4000 रुपये जेब में हो, 2000 रुपये जेब में हो, किराए महंगे आसमान से बातें कर रही हो, उससे अगर ये भी छीना गया हो तो फिर वो उनको कैसे राज़ी करे? खुदारा रहम करें। हमारे पास जो है कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो हम पुलिस को कहाँ से देंगे? हमारा तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं और शहरियों का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी आईजी सिंध साहब, आपकी जिम्मेदारी है। कराची पुलिस साहब सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में से घूमने से पुलिस महकमा अच्छा नहीं हो जाता। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनके हकूक़ के लिए बात करें। इन वाक़यात पर पुलिस सिर्फ FIR दर्ज कर लेती है। मोटरसाइकिल छीनना, कार चोरी और बैंक डकैतियां रोज का मामूल बन गया। आवाम का कानून और तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारों से एतमाद ही उठ चुका है। आज तक रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों वारदातों में से किसी के छीने हुए मोबाइल, पर्स, गाड़ियां और नकदी रकम से हजारों वारदातों में से 5 वारदातें रिकवर होना ना होने के बराबर हैं, जिसके लिए अवाम गुस्से का इजहार करते हुए IG
IG सिंध, कराची पुलिस चीफ और इंटेलिजेंस इदारों पर उंगलियां उठाने लगे हैं। जरूरत इस अमर की है कि जराइम पेशा अनासरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ करके अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, ताकि अवाम अपने इदारों पर फख्र कर सके और अपनी जिंदगी बेहतर बसर कर सके। शहर अकायद के ताजिर बरादरी, दुकानदार और शहरियों ने ABN न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंतहाई बहुत जो है नाकस है और पुलिस की कारकर्दगी इस वक्त मैं अगर कहूँ तो ज़ीरो होने के बराबर है। ज़िला मलीर की अगर बात करें तो आए रोज़ डकैतियाँ मामूल बन चुकी हैं और जो शरीफ इंसान है, वाइट कॉलर इंसान है, इस वक्त वो वैसे ही शदीद महंगाई से दो चार है, बेरोज़गारी से परेशान है। उसके बावजूद अगर ये इस तरह की वारदातें होती हैं, असले के ज़ोर पर आए दिन डकैतियाँ मामूल बन चुकी हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। मेरा ये मुतालबा है हुकूमत वक्त से और IG सिंध से कि खुदारा एक तो बेरोज़गारी है, ऊपर से महंगाई है, और अगर ये बेचारे लोगों से अगर ये डकैतियाँ मामूल बन जाएं तो यकीनन अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। मेरा हुकूमत वक्त से मुतालबा है, IG सिंध से मुतालबा है, स्पेशली DG रेंजर सिंध से मुतालबा है कि फ़ौरन इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और वो जो डकैती करते हैं, जो मुल्ज़मान हैं असले के दम पर जो डकैतियाँ करते हैं, फिलफौर उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। लम्हा फ़िक्रिया है और ये सवालिया निशान है पुलिस के नाम, रेंजर्स के नाम और जो हमारी इंतज़ामिया है उसके नाम। ये सवालिया निशान है, इसका जवाब उनको ही देना चाहिए, लेकिन आवाम जो है उसका कोई जो है हाल नहीं है, वो पुरसान हाल हैं और कोई दाद रसी नहीं हो रही। थानों के चक्कर काट काट के थक जाते हैं लेकिन कोई अजाला नहीं होता। अब इसको पुलिस की नाअहली कहिए या महंगाई से सताई आवाम जो गुजारा करने के लिए जुर्म की दुनिया में मुलव्वस हो गई है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत होश के नाखून ले और शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदगी से इंतजामात करे। जब तक पुलिस को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना बंद नहीं किया जाएगा, तब तक इन वाक़यात में कमी नामुमकिन है, जो कि शहरियों का कानून और इंसाफ पर एक तरह का अदम एतमाद का इजहार है। तो नाजरीन, ये थी इस हफ्ते की जुर्म कहानी। जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत है। याद रखिएगा, इंसानियत, कानून, इखलाकियात, हमदर्दी और एहतराम का दामन थाम कर ही ऐसे जराइम से खुद को और अपने मुआशरे को महफूज रखा जा सकता है। अगले हफ्ते जुर्म कहानी में हाजिर होंगे जुर्म की कुछ नई दास्तानों के साथ। तो देखते रहिए ABN और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।